he was in our 11th batch. So he was in our 11th batch and got placed with the highest CTC in that batch, right? He's currently working in an IT sales domain company. So you can have a basic discussion. We will understand about his journey, कि उनकी journey कैसी थी यहाँ पे, how SSB helped him, how he started, and what changes did he see in himself during his journey here, how the faculties have helped him out within the placements and everything, and how he is doing currently in his current organization. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट होने के बाद एसएसबी से आपका कनेक्शन खत्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप देख सकते हो प्रहर्ष ऑलरेडी आई थिंक 4 5 6 मंथ्स हो चुके हैं, 5 6 मंथ्स हो चुके हैं, राइट प्रहर्ष? 5 6 मंथ्स हैज ऑलरेडी। हाँ Actually, it is the third month after my passing. I joined in the January. Yes. हाँ, या इन जनवरी ही ज्वाइन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि ज्वाइन आप कहीं ज्वाइन कर लेते हो या कहीं आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो एसएसबी से आपका कनेक्शन खत्म हो जाता है। यू विल बी लाइक, आज प्रहर्ष यहाँ पे है, मे बी कल नेक्स्ट बैच में कोई और यहाँ पे एज एन एलुमनाई इंटरेक्शन के लिए बैठे, मे बी हर्ष सकते हैं, अभिषेक, खुशी, मनीष, शुभम, भावना, विजय, कोई भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? सो your skills will be developed, and after session also and after placement also SSB will be there। अगर आपको फिर भी placements में कोई problem आ रहा है, company में कोई problem आ रहा है, तो we'll be there with you guys, right? So over to Praharsh now. Praharsh will give a basic introduction of himself, क्या अभी वो कर रहे हैं, कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, and how his work is going on. Right. Thank you for the introduction, Trapti. It's great to see you all back after a long time, right? Hi guys, I hope you all doing Yeah, good. Praharsh. Right. All right. Great. I hope everyone is comfortable with English, or like should I like keep it bilingual? So bilingual. Sure. ठीक है. All right. So to start with, actually, as you all know, my name is Praharsh. I was from the 11th batch of SSB. I graduated with 3 offer letters in my hands. It was a great journey for me. Or from start till end, like whatever coaches you will get, I won't say tell them like they are some teachers or something. I'll refer them as coaches because they coach you for the life after the training, right? तो अगर स्टार्ट किया जाए अबाउट माई जर्नी, सो आई ग्रेजुएटेड इन 2025, राइट? उसके बाद I was basically a fresher. I was like looking out for opportunities. I was figuring things out. In that point, I also joined a coaching, like not a coaching, actually a program called Craftshala. I hope you have heard of it, right? So Yes, sir. Craftshala को मैंने join किया था. So basically like काफी मतलब it was an heavy investment, but I thought कि let's do it. But मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही इन द फर्स्ट मंथ आई डिडंट सी कि यार इट इज नॉट मेकिंग सेंस फॉर मी, राइट? तो आई थॉट कि मतलब आई डोंट थिंक आई शुड गो ऑन विद इट बिकॉज देयर वाज अ मेजर चंक ऑफ इट दैट आई आल्सो हैड टू पे लेटर. सो आई देन Sorry. I joined Craftshala's. In Craftshalla there are two basic courses. One is like the digital marketing one, second one is like the business leadership, SMLB, right? जिसका भी placement report आया है. So it is like make I joined the SMLB one, which is like the sales and marketing leadership, right? तो उसका अभी like latest report आया है और बहुत like news बन रही है कि they have like got 11.5 LP average package. बट आई नो कि मेरे बैच का बस एक या दो लोग ही हैं वहां पे, बाकी लोग आर नॉट इन द प्लेसमेंट रिपोर्ट. आई डोंट नो व्हाई. एनीवेज, सो आई डिडंट think that at that point in time it made a good sense for me to invest more. So I like waited for some time, and then one fine day I was scrolling through Instagram like many of you guys must be, right? And I saw an ad of Sacred School of Business, where it was written like up to 12 LPA,
I'll tell you my current CTC also in the last of the discussion part. So I thought ki up to 12 LP it is written, so it is a great opportunity for me. So I got in contact with Sudhanshu sir first, right? So like it was a great interaction. I had my interview, then I had my second round of interview with Sanjeev sir. So Sanjeev sir like grilled me ki like you doesn't look like very persistent because आपने क्राफ्टशाला छोड़ दिया तो यहाँ भी आप what is the proof of you being like very stable in it? So I gave him the fine points that I could, right? So उसके बाद like I got selected. We started with the sessions, and after the first 10 days I got to understand ki what real training looks like. So any of you can tell me like अभी आपके बैच में कितने days हुए हैं in the training started? I think 15 days. We 15 have days, right? completed, yeah, almost 15 days. 20, 15, Right. 20. So any industry visits also must have come by now, right? I think. EdTech. Actech, yeah. Vikas sir. No, Vivek. Vish- sir. Vivek sir, sorry, Vivek sir. Yeah, Vivek sir, sorry. Team leads, right? Right. Vivek He's sir very is nice guy. one. Yeah, he's like one of the finest, right? मतलब Yes, sir. अगर उनके notes आपने properly लिखे हुए हैं ना, I can tell you one thing, I can vouch for it, that in the interviews only those are going to come, right? Sales is all about the structure that you follow, right? विवेक सर ने जरूर आपको बताया होगा about like the sales structure that you follow, right? Introduction, lead generation, probing, mapping, and all of that, right? Yes. अगर वो आप लोग ने समझ लिया, sales is all about that, all right? Rapport building and everything, right? So ऐसे ही जब मतलब हमारा पहला सेशन हुआ था, that was there was one fine gentleman from IIM Sambalpur, I believe, right? So he had taken our sessions for performance marketing, right? And after that, Vivek sir came, and it was really like a magical week that we had, right? तो उन्होंने इतना हम लोग को अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट सेल्स, अबाउट एडटेक, बिकॉज अभी मुझे जो लगता है इंडिया में सेल्स की जो मेजर इंडस्ट्री है, वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री, दैट इज एडटेक आफ्टर कोविड, राइट? ऑल्दो लाइक द ट्रेजेक्टरी समवट फ्लैट राइट नाउ, बट स्टिल बहुत बड़ी इंडस्ट्री एडटेक, राइट? उसके बारे में काफी कुछ सीखने को मिला हमें विवेक सर से. देन Sharad sir also came, Sharad Gadyan. He might also come to train you guys. He's from real estate, Square Yards. And one another fine gentleman came. So like जो trajectory थी ना, वो इतनी steep थी हम लोग की learning के लिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री से like mentors नहीं आएंगे आपके लिए कि आपको बस एडटेक का एक्सपोजर मिलेगा, या फिर आपको बस हेल्थ केयर का एक्सपोजर मिलेगा, या फिर सिर्फ आईटी सेल्स का एक्सपोजर मिलेगा. जब आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपोजर मिलता है, बीट एफएमसीजी और व्हाट्सएवर, राइट? तो होता क्या है ना कि आपका थिंकिंग स्पैन जो है, द विथ एट व्हाट यू थिंक, दैट ग्रोज, राइट? बिकॉज सेल्स का क्या है ना कि हर इंडस्ट्री में अगर आपको सेल आता आप कर लोगे, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सी इंडस्ट्री में किस तरीके से सेल्स होती है, राइट? There is always B2C, there is always B2B, there is always consultational selling, right? For example, in EdTech, it is like straight hardcore B2B sales, right? Whereas in IT SaaS, where I am working, it is most about like consultational selling, that you have to understand the pain, you have to amplify the pain, make them feel the pain, right? अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो क्यों नहीं लग रही है, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, right? And then by the end of the session, give them a clear path that what are the next action steps, right? Now if right now I'm able to tell you all of this, that is because of the learning that I got from an organization called SSB, where you guys are working right now, right? So at this point of time, अभी आप लोग का सेशन बस स्टार्ट ही हुआ है, राइट? 15 दिन हुए, you guys are telling, right? अभी the best that you guys can do. अच्छा, विवेक सर is also here. Hi विवेक सर, how are you? गुड प्रहर्ष, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ सर. बस यार, आपकी जो ट्रेनिंग है वो काम आ रही है कंपनी में. काफी समय के बाद देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है. जी सर, लाइकवाइज. तो राइट कैसे सर,
अच्छा चल रहा है सर, टॉप परफॉर्मर चल रहा हूँ। अरे होना ही था, मैंने बोला था तुम अच्छा करोगे। राइट सर। वहीं पे हो ना अभी? अभी सर राइट ना, हाँ सर ऑर्गेनाइजेशन सेम है। अभी हाँ। आई एम इन देहरादून। अच्छा देहरादून चले गए, पहले तो वर्क रिमोट। फ्रॉम होम था पहले राइट तो। राइट, रिमोट था, फिर देन दे कॉल्ड कि शहर आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, फिर पैसा बढ़ाओ आ जाऊंगा। गुड टू सी यू, है ना। देखो ये हमारे नए लोग हैं, राइट सर। इनको थोड़ा सा ये लोग डरते हैं कि सेल्स कैसे करेंगे सर, कैसे होगा सेल्स। मैंने बताया कि रुको अभी रियल एग्जांपल, 1-2 महीने पहले बस हमारा बंदा ज्वाइन किया है, देखो अभी क्या कोड रहा है, तो सेल्स में क्या अचीव कर सकते हो, अभी तुम्हें लाइव एग्जांपल्स मिलेंगे, है ना। और राइट ऐसे सर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो बस जो तुमने सीखा, जो तुमने किया, जो हमने बोला तुमने जो किया, है ना, और राइट अभी सर। तुम क्या कर रहे हो, बस इनको बताओ यार कि ये भी अच्छा करें अपने लाइफ में। हमारा भी मोटिव यही है। बहुत अच्छा लगता है प्रहर्ष कि आपके जैसे लोग आते हैं और मतलब हमारे पास आते हैं, सीखते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ है ये, है ना, और बहुत अच्छी चीज होती है कि हमें लगता है कि यार हम लोगों का करियर संवार रहे हैं। एग्जैक्टली तो सर। जो भी सीखते हैं तो इनको बताओ थोड़ा सा कि मोटिवेट हो और ये जान लगाएं अपना थोड़ा सा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब जितने भी लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक चीज तो आप लोगों को कह सकता हूँ कि जॉब तो आप सबकी लगने वाली है। ठीक है। डिफरेंस बट ये रहेगा कि आप जो 15 लोग या 20 लोग हैं यहाँ पे, इनमें टॉप परफॉर्मर कौन बनेगा। ठीक है। एंड सेल्स इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी 30,000 की लग जाए बहुत है या 40 की लग जाए बहुत है, देन लाइक सेल्स इज नॉट फॉर यू, राइट। बट अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो, घड़ी पे नहीं देखते हो, लाइक राइट नाउ इट इज ऑलरेडी पास्ट 8, आई एम इन माई ऑफिस राइट नाउ, राइट। अगर आप लोग को चाहिए कि इन वेरी लेस टाइम आई कैन गेट ग्रेट करियर ग्रोथ एंड ग्रेट मनी आई कैन मेक, दैट कुड बी ओनली डन बाय सेल्स। और कोई इंडस्ट्री नहीं है, राइट। आज की डेट में अगर कोई भी मुझे एग्जांपल दे सके कि हु इज द वन ऑफ द रिचेस्ट गाय, आई कैन टेल यू व्हाट हिज फर्स्ट जॉब वाज। कोई भी बताइए। अंबानी। अंबानी, राइट। You know what Dhirubhai Ambani used to do? अनिल अंबानी। Anil Ambani. Anil is not amongst the richest, right? Anyways, right, जो फाउंडेशन बिल्ड किया था अंबानी फैमिली का, that was धीरू भाई, right? राइट। The only thing that he was good at was selling, right? Yes. उन्होंने बल्ब भी बेचे, उन्होंने तेल भी बेचे। At पीडब्ल्यू। one point in time, उन्होंने what we say like coins melt करके the arbitrage he used to get. All of that why and how? Because he knew the art of selling, right? कोई भी सीईओ आप उठा के देख लेंगे ना, फॉर्चून 500 कंपनीज का, 70 to 80% of them have started their career from sales. I'm very damn sure of it कि विवेक सर और संजीव सर ने आप लोग को ये चीज बताई होगी कि कोई भी जो कंपनी होती है, उसका हार्ट एंड सोल बस सेल्स होता है, राइट। अगर 4 पहिए हैं किसी गाड़ी के, उसमें से 3 पहिया सेल्स है, राइट। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू नहीं करोगे तो किसी और की सैलरी नहीं आएगी, राइट। सही। 2 दिन अगर हमारा रेवेन्यू नहीं हुआ तो ऑपरेशंस वाले हमसे कहते हैं कि प्रहर्ष भाई कुछ सेल करो, नहीं तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, हमारी सैलरी कहाँ से आएगी, राइट। तो वन थिंग आई कैन टेल यू फॉर श्योर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं आप लोग, सेल्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर सेल्स आ गया ना, एआई आपकी जॉब खा सकता है। मैं तो सैस में हूँ, स्टिल आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल विद सेलिंग, ना एआई आपकी जॉब खा पाएगा, ना क्वांटम कंप्यूटिंग आपकी जॉब खा पाएगा, कोई आपकी जॉब नहीं खा पाएगा, राइट। बिकॉज वेन एवर एनी वन सेल्स एनीथिंग, वो कैसे मतलब होता है, बिकॉज ऑफ अ पर्सनल कनेक्ट, राइट। हर्ष इस बैच में मुझे दिख रहे हैं काफी एक्टिव हैं, राइट। आई बिलीव कि आप शायद हाईएस्ट पैकेज ग्रैब कर सकते हो। एंड ऑल ऑफ यू गाइस, बी इट लाइक खुशी, अरुण, भावना, शुभम, नितिन, आदित्य, नवीन, विजय, ऑल ऑफ यू गाइस, यू ऑल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट। मनीष, आप सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। इन नो टाइम आई नो संजीव सर आप लोग के इंटरव्यूज अलाइन करवाना स्टार्ट कर देंगे, राइट। मेरा पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं अपने बारे में,
मैं 3 ही इंटरव्यूज में बैठा और आई क्रैक्ड ऑल ऑफ दोस 3, राइट। एक था इमोहा में। इमोहा इज लाइक अ ग्रेट हेल्थ केयर कंपनी, राइट, इट इज वेरी रैपिडली ग्रोइंग, ऑलराइट। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एट 5.5 LPA, ऑल्दो देयर बजट वाज 5, बट उन्होंने कहा कि प्रहर्ष हमें चाहिए, तो संजीव सर सेड दैट 5 पे यू कांट अफोर्ड हिम, सो दे सेड ऑल राइट, वी विल पे 5.5 टू हिम, राइट, एज अ फ्रेशर आई एम टेलिंग यू। उसके बाद द सेकंड ऑफर आई गॉट वाज ऑन Alibaba, all right. Alibaba we had discussionals of 8.5 LPA, all right. 5.5 LPA से 8.5 LPA, right. Very big number, sir. Very big number, exactly, and that too in B2B, right. And you know what kind of organization Alibaba is, right. And then Fresher you are. yeah, I am a fresher, yes. तो ये कैसे हुआ, मतलब आप सबको कुछ ना कुछ तो आता ही है, right. What is the core thing you have cracked all the 3 interviews? What is the core What thing do you can- think, that could be the core thing for me cracking all the interviews? What do you think? speaking skills are activeness? ऐसा कुछ? I think your speaking skill is very good. मतलब like excellent. Right. So see, Confidence in- right. So देखिए, sales is all about confidence, right. If you know anything or you don't know anything, if you have confidence, you can sell anything, right. Because see around yourself, आपके आसपास ज्यादातर लोग ना डिलेमा में ही हैं कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, डू आई लुक गुड, am I in the right shape or not and everything, right. अगर आप Yes. किसी से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो उनको लगेगा आपकी बात सही है, right. And in India, if you see, people don't want to think about anything, they just want to be told about something, right. बचपन से हम लोग की अपब्रिंगिंग ऐसे ही हुई है। अगर मैं आदित्य से बोलूं कि आदित्य आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपके पेरेंट्स ने बोल दिया आदित्य तू इंजीनियरिंग करेगा, विल से ओके, राइट। थोपने वाला सिस्टम ज्यादा है थोड़ा सा यहाँ पे। अपना Right. सेल्फ क्या मैं आपको क्या करना है, ओनली द वन थिंग दैट यू हैव टू डू इन द इंटरव्यूज इज वन, बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश, राइट। मेरी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी Exactly. नहीं थी, I have मैं one यही question पूछना like चाहती थी language. आपसे। राइट, लैंग्वेज एग्जैक्टली। का मेरा एक क्वेश्चन है कि कितना बैरियर है लैंग्वेज एक इंटरव्यू में, या एक के मतलब सेल्स में कितना लैंग्वेज का बैरियर है, मतलब लाइक इंग्लिश हिंदी। देखिए, सेल्स में लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल, मैं जहां काम कर रहा हूं राइट नाउ, आवर मेजर क्लाइंटेल इज फ्रॉम द साउथ, southern part of India, right. Because my communication skills are good, I'm able to converse with them, I'm able to convert them, I'm able to close them, right. पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेरे कलीग्स हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं बोल पा रहे हैं उनकी सेल नहीं होती है। वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों पे टारगेट करते हैं। 150 करोड़ के पॉपुलेशन वाले कंट्री में आपने अगर 50 लोगों को भी लाख लाख रुपए की चीज बेच दी तो आपने 50 लाख की सेल कर दी। अब आप इतने तो मेहनती हो ही ना कि आप 150 करोड़ में 50 लोगों को कुछ बेच सको, राइट। एग्जैक्टली। या आदित्य, यू वर सेइंग समथिंग। नहीं सर, बहुत सही पॉइंट। मतलब माय पॉइंट इज मतलब इंटरव्यू पार्ट में कितना, मतलब ये क्या, ये जो इंटरव्यूअर होता है वो सब लाइक लैंग्वेज बैरियर देखता है। सी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, if you are going into SaaS, in SaaS to some extent it could be a barrier for you, because SaaS में क्या होता है कि the ticket size is big and the kind of clients you will be dealing with would be very educated, very highly educated and things like that, right. तो उनसे बात करने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत ही एक्सीलेंट होनी चाहिए। नहीं भी बहुत है तो भी मतलब ठीक ठीक तो होनी चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम SaaS इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री आप उठा लो, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक FMCG, आई कैन लाइक से कि आप अगर यहाँ 15 लोग हैं, यहाँ पे कई लोग चाह रहे होंगे कि पेप्सिको में जॉब लग जाए, कोका कोला में जॉब लग जाए, राइट, क्योंकि हम भी यही चाह रहे थे, राइट। तो अगर आप लोग FMCG में ज्वाइन कर रहे हो, वहां पे आपको इंग्लिश नहीं बोलनी है, यू हैव टू डील विद द लोकल डीलर्स हु आर देयर, राइट।
अब उनसे आप इंग्लिश में बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम रिटेलर इन बिहार, अगर आप वहां जाके इंग्लिश बोलोगे वो कहेगा कि क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, राइट? सो वहां मतलब आपकी इंग्लिश नहीं काम आएगी। बेसिकली सेक्टर पे डिपेंड कर। Apart from SaaS, there is nowhere that your communication skills are going to create a gap for you. Be it healthcare, be it FMCG, be it B2B SaaS. For example, I told you Alibaba I got selected in, right? मेरी फरीदाबाद पोस्टिंग आ रही थी, तो वहां पे तो इवन जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, he got intimidated with my communication skills, right? And that guy was the sector head, right? बट वो सेक्टर हेड है, तो इसका मतलब ये नहीं उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती होगी या फिर उसको सेल्स नहीं आती होगी। आपकी अच्छी है भी, नो डाउट। मेरी, मैं अब आपको बता रहा हूँ ना। आदित्य आप कुछ पूछ रहे हो? सर मेरा एक वो था कि मैं जैसे अभी चाह रहा था कि मैं एडटेक में अभी साल भर, मेरी ये रिसर्च थी अपनी कि मैं एडटेक में साल भर अपना करियर ग्रो करूँ, मतलब सेल्स Right. वगैरह, उसके बाद मैं सैस के लिए ट्राई करूँ। तो मतलब ये बात सही है कि एक बार मैं सैस के लिए डायरेक्ट ट्राई करूँ और उसके बाद एडटेक को। See, if you are directly targeting for SaaS, that could also work for you. And if you are targeting for EdTech, that could also work for you. For example, मेरी कंपनी में ज्यादातर लोग जो है वो EdTech से ही आए हैं। आकाश से बहुत सारे लोग आए हैं, because like one of our co-founders was AGM in what we say, Akash, right? Minnal sir. So he was AGM in Akash, right? तो आप अगर चाहो तो एडटेक से ट्रांजिशन कर सकते हो, इफ यू थिंक इज दैट SaaS is good enough for you, because SaaS is very sassy right now, right? It is a growing industry. अगर आपको लगा दैट, सैस के बारे में मतलब आई डोंट नो अबाउट। राइट, सो देखिए SaaS इज वेरी, इन वेरी सिंपल टर्म्स, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, सो नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स इज अ सॉफ्टवेयर, राइट? इट इज अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म where you can watch movies and web series and what not, right? तो आपने अपना पहले एक सब्सक्रिप्शन दिया, सब्सक्रिप्शन के बाद आपको उन्होंने एक्सेस दिया टू सी ऑल द मूवीज एंड एवरीथिंग, राइट? तो दैट इज SaaS. फॉर एग्जांपल, आप CRM जानते हैं? CRM, जैसे अगर आप में से किसी ने भी काम किया होगा, वर्क किया होगा कहीं पे, तो जो CRM होता है उस पे आप मतलब अपना डेटा डाल दो कि कौन से क्लाइंट है, किससे कितनी बात हुई, कब फॉलो अप करना है, एवरीथिंग, राइट? तो SaaS is a CRM, right? SaaS is CRM, SaaS is ERP, right? ये सब जो भी चीजें हैं, ये सब SaaS में आते हैं, because the business model here is first you get a subscription and then you get the access to use the tool, right? Sudhanshu sir also have like experience in ERP, right sir? Yeah, I have. Right. यहाँ पे आपको मतलब जो mentors आपको चाहिए are going to get, right? Be it Sudhanshu sir, be it Sanjeev sir, be it Vivek sir, जो industry का आपको access चाहिए, right? You can like, if anyone of you wants help at any point in time, you can connect to me also, right? There is no hesitation to do that, right? हम लोग का, सब लोग का यहाँ पे यही मोटो है कि you guys grow, right? Because if you guys are growing, then the organization will grow. And like I'm always like, मतलब मुझे बहुत वो लगता है कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिली, मुझे कई सारे मेंटोर्स मिले, राइट? हु विल बी लाइफ लॉन्ग विद मी। आई नो कि अगर मैं कल को विवेक सर को बोलूंगा कि सर आई एम इन अ प्रॉब्लम और मुझे जॉब चाहिए, विवेक सर बोलेंगे आ जा भाई, मैं देख लूंगा। बीट सुधांशु सर और बीट संजीव सर, राइट? और ये मैं 6-8 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लंबे टाइम की बात कर रहा हूँ। मेंटोर इज ऑलवेज गुड, इसमें कोई डाउट नहीं। मेंटोर इज ऑलवेज, अभी तो हम लोगों ने विवेक सर जी को ही देखा, बट अभी और भी लोग आएंगे। हाँ, बट विवेक सर का तो नेचर आई थिंक बेस्ट है। यस, एग्जैक्टली। या विजय आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर एज अ फ्रेशर, लाइक अगर हमको इंटरव्यू क्रैक करना है तो हमको किन बातों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? व्हाट आर लाइक द वेज वी कैन क्रैक एन इंटरव्यू? राइट। सो विजय देखिए, जब व्हेन यू आर अ फ्रेशर, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका क्योंकि कोई वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है, राइट? व्हाटएवर द क्वेश्चंस विल बी, दोज विल बी अराउंड योर
एजुकेशन, योर हॉबीज एंड एवरीथिंग, राइट? क्योंकि उसी से वो लोग समझेंगे कि आर यू आर राइट फिट फॉर सेल्स और नॉट, है ना? तो अगर आपको चाहिए कि आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथ जाए, पहली बात तो कैसे इंटरव्यू को अपने हिसाब से मोल्ड करना है वो भी आपके हाथ में ही होता है, राइट? कोई भी इंटरव्यूअर चाहे जितनी बड़ी पोजीशन के लिए हो, कभी भी इंटरव्यूज के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रिपेयर करके नहीं आता है, राइट? आप जो उसको इन्फॉर्मेशन दोगे उसी से वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, राइट? तो अगर विजय बता रहे हैं कि आई हैव डन बीबीए फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड आई हैव दीज हॉबीज, तो वो उन्हीं से पूछने वाला है, राइट? गिव द पॉइंटर्स of which the answers you already know, right? For example, विजय बोले कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, right? So बोलेंगे ओ all right, so did you play cricket professionally or not, right? And like why did you not pursue it professionally or anything, right? So कुछ भी आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो नहीं पॉइंटर्स पे पूछा जाएगा। ये वर्केक्स वालों के लिए भी है, ठीक है? जो आपकी सीवी में लिखा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी समझ होनी चाहिए, ठीक है? एंड बीट फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड। विजय, आप अभी फ्रेशर हो, राइट? आपके लिए द ओनली थिंग दैट विल मैटर इज कॉन्फिडेंस, ठीक है? क्योंकि वो आप पे बेट लगाएंगे कि क्या विजय कल को मुझे वो रेवेन्यू ला के दे सकता है कि नहीं, राइट? फॉर दैट दे विल ग्रिल यू, दे विल इवेल्युएट यू। इमोहा में मेरा जो इंटरव्यू हुआ था बहुत ग्रिल हुआ था मैं, राइट? बहुत ग्रिल किया था मुझे, मैं हर चीज का जवाब दे रहा था, तब भी वो मुझसे कुछ और पूछ ले रहे थे, कुछ और पूछ ले रहे थे, राइट? What were the बहुत ग्रिलिंग questions? इंटरव्यू था, What were the राइट? questions they asked? Like which kind of questions? The questions were around sales only, like about my experiences in my college, because I was a sports person, right? I have played state in taekwondo and in cricket also, like I represented state and everything, right? तो उससे अराउंड बहुत क्वेश्चंस पूछे कि कैसे Which आपकी जो state? स्पोर्ट्स, मैंने क्रिकेट में जैसे स्पोर्ट्स में मैंने काफी रिप्रेजेंट Which किया state? है, I think. उत्तर प्रदेश, Where are you राइट? from, उत्तर प्रदेश? लखनऊ। लखनऊ में कहाँ? आप भी लखनऊ से हो? Yeah. मैं I'm इंदिरा नगर से currently हूँ। living in Lucknow. अलीनगर, अलीगंज। अलीगंज, अलीगंज, राइट? हाँ, मैं इंदिरा नगर से हूँ, राइट? तो कहाँ पे थे हम? या सो जो भी आपसे मेरे से इमोहा में क्वेश्चन पूछे गए थे, दोज वर कि कैसे आपका जो स्पोर्ट्समैनशिप है इज हेल्पिंग यू बिकमिंग अ बेटर सेल्स पर्सन, राइट? फिर मुझसे ये भी पूछा था फॉर एग्जांपल कि अगर कोई, मतलब ये क्वेश्चन मैं कभी भूलूंगा नहीं, कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पर कोई चीज 2 लाख में मिल रही है, सेम चीज कोई अगर 1,80,000 में मिल रही है, तो आप कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपसे ले उससे ना ले, राइट? Quality of content. सॉरी, Quality of content. नहीं नहीं, सेम थिंग। अगर एक लेज आपको 20 रुपए में मिल रहा है, वही चीज 30 रुपए में मिल रही है, तो 20 वाला लोगे कि 30 वाला? 20 वाला ऑब्वियस सी बात। 20 वाला, राइट? सो आई हैड टू प्रूव माय पॉइंट कि मैं कैसे उनको कन्विंस करूं कि 30 वाला ज्यादा बेहतर है। What you do? तो हमको सर 20 वाले को बुरा दिखाना पड़ेगा। दोनों सेम है भाई, कैसे बुरा दिखाओगे? यू आर अपसेलिंग एनीथिंग, राइट? तो आपने कैसे किया? सो सिंपली द क्वेश्चन वाज अराउंड एडटेक, ठीक है? कि अगर इफ एमिटी का एमबीए, डिजिटल एमबीए इज फॉर 2, राइट? तो अगर कोई एमिटी का एमबीए 2 लाख का है, राइट? और वो मैं थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल पार्टनर्स इन एडटेक, राइट? तो अगर मैं कोई चीज 2 लाख की दे रहा हूँ, सेम एमिटी में जाके 1,80,000 का मिलेगा, तो वो क्यों मुझसे खरीदे, राइट? तो मैंने जो पॉइंट प्रेजेंट किया था खुशी, वो ये था कि फॉर एमिटी यू आर जस्ट अनदर क्लाइंट, राइट? उनके रोज बहुत सारे लोग एमबीए खरीद रहे हैं, डिजिटल एमबीए खरीद रहे हैं, कोई उसका मतलब वो ध्यान नहीं देते, देयर इज नो पोस्ट सेल सर्विस, नथिंग, राइट? वेयर इफ यू परचेज फ्रॉम मी, आई विल बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसको कॉल करोगे? वहां तो आपके 2 लाख रुपए आपने 1,80,000 यू हैव इन्वेस्टेड, बट देयर इज नो वन टू टॉक टू। ईमेल्स, यू नो आपको कितने ऑफिशियल ईमेल्स के रिवर्ट आते हैं, एवरीथिंग, राइट? सो इन दिस केस आई कैन बी योर डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आपको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आएगी, पोस्ट योर एमबीए, आई विल बी देयर फॉर यू। अगर आपको टेस्ट्स में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, आई विल बी देयर फॉर यू।
अगर आपके HOD से कांटेक्ट करना है, आई विल बी द ब्रिज बिटवीन यू एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप 20,000 रुपए बचा रहे हो और आप इतना सारा पेन लेने के लिए तैयार हो, देन तो लाइक यू कैन इन्वेस्ट देयर इटसेल्फ, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट जर्नी फॉर यू। सो यू टेल मी व्हाट वुड यू वांट टू प्रेफर, 2 lakhs and a great journey or 1,80,000 and a very bad journey? After this he didn't ask me any question, right? और उसके बाद संजीव सर told me कि like उनका 5 लाख था, but they even said कि भाई मुझे 5.5 में भी चाहिए ये बंदा, right? And the VP विशाल sir, he personally contacted me कि प्रहर्ष when can you join? I said sir soon. I was waiting for better offers, right? एजुकेशनल बैकग्राउंड लाइक मतलब आपने I have done graduation my कहाँ से BBA. किया? I have done my BBA from Lucknow itself, National PG College. Right. मैंने लखनऊ से ही अपनी एजुकेशन की है। 12th CMS, सॉरी, 10th and 12th also CMS? नहीं। 10th I have done from Rudrapur, Uttarakhand. It was a sports college because I told you I represented a state in cricket which is Uttar Pradesh, right? तो उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज था, वहाँ पे I did my 10th. 12th I did from Dehradun itself. And उस टाइम कोरोना आ गया तो things went south. Then I came back to Lucknow. Yeah, Nitin, you have a question. सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने फील्ड Thank में you, अच्छा thank you. कर। Thank you, Nitin. सर जैसे कि अभी आप सेल्स पे हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि सेल्स बहुत चैलेंजिंग है, उस पर बहुत सारी रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, ठीक है। जनरली सबको ही कहता है, जहाँ भी सर रिसर्च करो सारी चीजें यहीं पे बताते हैं कि चैलेंजिंग है, रिजेक्शन बहुत फेस करने पड़ते हैं। तो सर जैसे कि मैंने फर्स्ट कुछ मतलब मैं चाह रहा था कि आप अपने सेल्स की फील्ड पे आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आप फेस कर रहे हैं कि जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हर टाइम एक जैसा तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो हर फील्ड में होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या सेल्स की सर? ऑल राइट। सो आपने 2 क्वेश्चन पूछे, मैं आपको पहला बताता हूँ। जो आपने बोला कि सेल्स के बारे में हर कोई बोलता है कि बहुत चैलेंजिंग फील्ड एंड एवरीथिंग, राइट? बिल्कुल। आप आज की डेट में बताइए सबसे ज्यादा ले ऑफ कहाँ पर हो रहे हैं? सर कोई आइडिया भी अच्छे से कोई आइडिया नहीं करता। आईटी फील्ड जो है वहां सबसे ज्यादा ले ऑफ हो रहा है, राइट? ओके। तो वहां क्या चैलेंज नहीं है? बिल्कुल चैलेंज तो है सर। एवरीवेयर डिपेंड ऑन योर स्किल। चैलेंज देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको सेल तो अपनी लाइफ में करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, राइट? आप आईटी में हो, आप हेल्थ केयर में हो, डॉक्टर क्या अपने को बेचते नहीं है? If doctor doesn't sell themselves, then there are no new clients coming to them and they won't make any money further, right? अगर कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी आदमी है, even in the interview you are selling yourself to the interviewer, right? And the interviewer is also selling yourself themselves कि why you should join my company, right? Imoha sold themselves to me कि हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करो। Alibaba sold themselves to me, right? कि क्यों हमारी कंपनी ज्वाइन करो। सो सेल्स हर जगह है भाई, आप अभी भी कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेचते ही मिलोगे, राइट? ओके सर। और चैलेंज की अगर मैं बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूं। यस सर। राइट। तो राइट, अब एक चीज और है, मैं क्या बोल रहा था राइट नाउ, आई फॉरगॉट। आप बता रहे थे सबसे बड़ा चैलेंज कौन, चैलेंज के बारे में। राइट। तो मैं ये बता रहा था सेल्स के बारे में, राइट? तो बिल्कुल। अगर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, अगर आप ऐसा काम करो इसमें आपको मजा नहीं आता है, तो आप बोर हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, बिल्कुल। ठीक है? आईटी वालों को देखा है, 5 दिन रगड़ के काम करते हैं, 2 दिन कुछ ना कुछ करके बेचारे परेशान ही रहते हैं कि फिर मंडे आ गया, क्योंकि उनको काम पसंद नहीं है। मुझे तो सेल्स बहुत पसंद है, बहुत मजा आती है। उसका रीजन मैं आप बताऊं क्या है? इफ यू आर द टॉप परफॉर्मर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन इज गोइंग टू प्रेज यू बिकॉज दे नो कि अगर उनकी सैलरी आएगी तो आपकी वजह से आएगी, राइट? बीट गर्ल्स और बॉयज, राइट? हर कोई आके आपसे बात करना चाहेगा, आपसे दोस्ती करना चाहेगा, हर कोई आके। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आई एम द यंगेस्ट एंड आई एम द हाईएस्ट पेड। आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस लाइक व्हाट इज माय करंट सीटीसी। शायद अभी संजीव सर को भी नहीं पता होगी, राइट? मैं आपको बताऊंगा अभी एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है?
तो Okay. अगर आप लोग सोच रहे हो कि सेल्स में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, तो सब हो जाता है, बस आपको मेहनती होना रहता है। एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू आस्क्ड नितिन कि क्या चैलेंज आता है सेल्स में, स्ट्रेट अप मैं आपको बताता हूँ, there is not going to be any challenge if you are great at prospecting. Now, do you guys know what is prospecting? ये सर प्रोस्पेक्ट मतलब कस्टमर, मतलब एक्चुअल में जो परचेज करने वाला है उसको ढूंढना। अगर आपकी हमेशा पाइपलाइन भरी हुई है, अगर हमेशा आप अग्रेसिवली प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? ये मना कर दिया, कोई बात नहीं, 5 और इंतजार कर रहे हैं, राइट? और जब आप लोग बिल्कुल। सेल्स में अब जाओगे ना, द कंपनीज दैट यू विल बी इन अलाइंड, बी इट एनी कंपनी, अगर इमोहा हो या नेक्स्ट डोर एआई फॉर एग्जांपल, या फिर अलीबाबा, हर जगह अगले को आपकी जरूरत है, आपको अगले की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इमोहा का मैं बताऊं, सो ये इट चीज विवेक डील्स सर विद समझाते हैं एल्डरली केयर। हाँ, तो विवेक सर नहीं हमें बताया, हम ही आपको बता रहे हैं, राइट? कि जितना तुम डरना नहीं है, उनको नीड है तभी वो इंटरव्यू लेना है। एग्जैक्टली। नहीं, मैं आपको सेल्स का बता रहा हूँ। जैसे नितिन ने पूछा क्या प्रॉब्लम फेस करते हो आप, राइट? अगर आप ज्यादा से ज्यादा नितिन प्रोस्पेक्टिंग करते हो, दिस आई एम टेलिंग यू आफ्टर द जॉब, राइट? ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी पाइपलाइन भरो। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग में अच्छे हो और ज्यादा से ज्यादा लोग को कनेक्ट कर रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी इश्यूज, राइट? प्रॉब्लम बस तब होती है जब आप बैठे और सोच रहे हो यार मेरे पास कोई पाइपलाइन नहीं है, मैं किसको कॉल करूं, नई पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, वही टाइम पे आप परेशान हो गए। देयर इज अ बुक कॉल्ड फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग, आई थिंक दैट यू गाइस शुड रीड दैट। आप लोग पढ़िएगा वो बुक, इट इज अ ग्रेट बुक, ऑलराइट? इट इज फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग, राइट? आई होप दैट नितिन आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया आपको। सर एक क्वेश्चन और है सर। बताइए। सर जैसे एज अ फ्रेशर अभी हम सीख रहे हैं, राइट। जनरली हम लोग गलतियां तो हम बहुत ज्यादा ही करते हैं, वो तो पता है क्योंकि हमें इस फील्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं। तो सर हम कुछ बिगेस्ट जो कुछ बड़ी गलतियां आप हमें एक्सप्लेन कर दें कि मतलब हमें इन गलतियों पर तो विशेष ध्यान देना ही है, ताकि हम सबसे बड़ी तो नहीं करें, छोटी तो ठीक है कि फिर मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता हम गलतियां कर कहाँ रहे हैं, क्योंकि हम बस करते जा रहे हैं, बस हमें समझ में कुछ नहीं आता। कुछ गलतियां, कुछ जो की पॉइंट्स वो हमें दिमाग पे रहे कि हमको यहाँ पे नहीं लैग करना है, बाकी वहां चल जाएगा। राइट। बिल्कुल। नितिन देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे लग रहा है यू गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस थिंक दैट सेल्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स और समथिंग, राइट? सेल्स इज वेरी सिंपल एंड वेरी ह्यूमन। कॉम्प्लेक्स रहता तो हम लोग आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रहते क्या? नहीं, सेल्स सिंपल है, आप आ गए, राइट? बट जो प्रोसेस है, मुझे लग रहा है उसमें कई लोगों को लग रहा है कि कुछ तो लाइक समथिंग विल गो साउथ, कुछ तो गलत हो जाएगा, राइट? मैं आपको बताता हूँ नितिन, एज अ फ्रेशर इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, the person who has hired you knows that you are a fresher, right? Okay. आपका जो सबसे बढ़िया मेंटोर होने वाला है, that is going to be your manager itself, ठीक है? अगर अभी मैं आपको बता भी दूं कि आपको क्या गलती करनी नहीं है या कुछ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एनीवेज गलती करोगे, और गलती करोगे तभी सीखोगे, राइट? सेल्स इज द ओनली स्किल जो सिर्फ करके आती है, राइट? जितना आप सेल्स करोगे आप हाजिर जवाब होते जाओगे। खुशी का एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने जब बोला कि आई वाज नॉट वेरी गुड एट माय कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश स्पीकिंग, राइट? तो खुशी हैड दिस क्वेश्चन की तो कैसे आपने इंप्रूव किया, राइट खुशी? राइट। तो उसका सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। जब मैं यहाँ स्टार्ट किया था, आई वाज आल्सो नॉट, हाउ आई बिकेम बेटर वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग। शीशे के सामने रोज आधा घंटा इंग्लिश बोल रहा था, 3 महीने में my English became good, because from the starting I knew कि like I wanted to join SAS, because SAS में the career trajectory is very steep, so I was very clear that I want to join SAS, and for that I want good English, right? अब आप में से कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा, जैसे आपने नितिन बोला कि क्या गलती नहीं करनी है, राइट? मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या गलती नहीं करनी है। यस सर। अपने इनपुट्स कम मत रखिएगा,
राइट मतलब सेल आना ना आना आपके हाथ में नहीं है, इनपुट आपके हाथ में, राइट। कल को अगर आपका मैनेजर बोले सेल क्यों नहीं आ रही है, तो आपके इनपुट्स कम नहीं होने चाहिए, राइट। ऑल ऑफ यू गाइस वर्क ऑन योर इनपुट्स, यू शुड बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। सेकंड चीज जो आपको नहीं करनी है, अगर थोड़ा टेक्निकल में जाऊं, तो कभी भी अपने शोल्डर डाउन नहीं करने इन अ सेल। दिस आई एम टेलिंग यू इन अ सेल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। आपकी अथॉरिटी शुरुआत से अंत तक बनी रहनी चाहिए इन एनी सेल्स कॉल यू आर इन, राइट। जहां कस्टमर को चला पता कि भैया हम आपसे ऊपर हैं, आप लोग सर सर करके बात करोगे तो सर पे ही बैठ जाएगा कस्टमर, राइट। उसको हमेशा ये फील होना चाहिए दैट आपको जरूरत है, आप हमारे पास आए हो, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो स्टे काम, ऑलराइट। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। थर्ड थिंग जो आपको गलती नहीं करनी है कि कभी भी घड़ी की तरफ नहीं देखना है, राइट। ज्यादातर लोग जो यहाँ पर है, आई बिलीव कि यू आर इन अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर, राइट। यस सर, यस सर। मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, अगर राइट नाउ इफ यू गाइस स्टार्ट थिंकिंग दैट वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए, 9 to 5 मिल जाए, राइट, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर एनी वन ऑफ यू इन एनी इंडस्ट्री व्हाटसोएवर। इवन जब मैं भी था, राइट, मुझे याद है मैंने पूछा था कि सर वर्क लाइफ बैलेंस का क्या रहता है, राइट। तो उस टाइम मुझे भी यही जवाब मिला था कि वर्क लाइफ बैलेंस सोच रहे हो तो सेल्स मत करो। एंड नाउ व्हेन आई थिंक कि देयर इज लाइक वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट एक्चुअली अ थिंग, बॉलीवुड ने बनाया एक चीज, राइट। तो दिस इज द थिंग, काम करो अच्छे से, फोकस करो काम पे एंड एवरीथिंग। या शुभम, यू हैव अ क्वेश्चन? सर आपने बोला इनपुट कम नहीं होना चाहिए, सर इनपुट मतलब क्या होता है ये बता, मतलब मुझे पता नहीं है। इनपुट शुभम क्या होता है आपका, जैसे समझ लीजिए आप कोई काम करते हो, राइट, कोई आप जॉब में जाते हो, राइट, तो आपके रोज के केआरए होते हैं, राइट, केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके थ्रू आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक होते हैं, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि 3 घंटे से कम कॉलिंग नहीं रखनी है, राइट, तो कॉलिंग आपका 4 घंटे से ज्यादा का होना चाहिए, राइट। सेल हो चाहे ना हो, आपका मैनेजर बोले कि सेल क्यों नहीं हो रहा, आप दिखाओ कि भाई देखिए 4.5 घंटा मैंने कॉलिंग करी है, राइट। देन ही विल नो कि हाँ एफर्ट्स में कमी नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम दैट ही इज फॉलोइंग, तो उसमें ही विल हेल्प यू आउट। दिस इज द इनपुट्स, मेहनत इन वेरी बेसिक टर्म्स, राइट। या हर्ष, यू हैड अ क्वेश्चन? मेरा मतलब पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा मतलब कैरियर गैप है, तो व्हाट आई डू, मतलब मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, क्योंकि मतलब मेरा 2-3-4 साल आई थिंक कैरियर गैप, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में स्टॉप हो गया था। तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री में आ रहे हो आप, यहाँ करियर गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ रेवेन्यू से फर्क पड़ता है भाई। इफ यू आर एबल टू गेट द रेवेन्यू इन, सीईओ मुझे अपने साथ बैठा के खाना खिलाते हैं, राइट। और ये मैं अपना सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, जितने अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशंस जो बेस्ट सेल्स पीपल होते हैं ना, दे आर ऑलवेज लाइक प्रेज्ड अ लॉट। सुधांशु सर व्हेन ही वाज इन बायजूस, he was like the top performer, he got a revenue of 1 CR plus in 7 months, right। सुधांशु सर ने हम लोग को बताया था at that point in time, right। तो उस टाइम he was the India's best performer in बायजूस, ठीक है। तो अगर आप इस लेवल का परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो रीजनल लेवल से नेशनल लेवल तक हर कोई जानेगा कि यार दिस इज अ गाय हु इज लाइक डूइंग क्रेजी रेवेन्यूज। तो आपके गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रेवेन्यू अपना अच्छा रखो, राइट, परफॉर्मेंस अपना अच्छा रखो, सब लोग आपको दामाद बना के रखेंगे इन सिंपल टर्म्स, राइट। या एनीवन? अरुण आल्सो हैड अ क्वेश्चन आई बिलीव। Yes, sir. I wanted to ask you that after completing this course, which organization we should join? सी इट इज वेरी सब्जेक्टिव। मेरे पास 8.5 लाख का ऑफर था अली बाबा जैसी बड़ी कंपनी में, स्टिल आई चोज नेक्स्ट डोर एआई वेयर माय स्टार्टिंग पैकेज वाज 9 lakhs, लाइक स्टिल 8.5 से ज्यादा था, लेकिन स्टिल लाइक ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी नहीं थी, राइट। बिकॉज मुझे मालूम है सैस में कैसे ग्रोथ होती है,
इसलिए मुझे SaaS में चाहिए था। अगर आपको SaaS में इंटरेस्ट है तो आपके लिए SaaS बेहतर होगा। अगर आपको हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, जैसे हमारे बैच में एक थे योगेश थे, उनको हेल्थ केयर में बहुत इंटरेस्ट था, राइट? सो उनको चाहिए था हेल्थ केयर में ऑफर मिल जाए, ऑल्दो ही वाजंट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, बट लाइक संजीव सर ने बहुत कोशिश करी, ही अलाइंड मल्टीपल इंटरव्यूज फॉर हिम, राइट? तो सब्जेक्टिव हो सकता है बहुत ज्यादा, राइट? मुझे लग रहा है कि किसी को FMCG चाहिए होगा, किसी को हेल्थ केयर चाहिए होगा, किसी को एडटेक चाहिए होगा, राइट? तो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, वॉट एवर यू गाइज वॉन्ट। इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। आंसर मैंने मतलब मेरे को एक क्वेश्चन और ये भी पूछना था कि आपने बताया था आप स्पोर्ट्स मैन हैं, यू आर अ स्पोर्ट्स मैन, राइट। देन I wanted to know that why you should not join any sports management, like you could join, so that's why. मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल, हिंदी में पूछ रहा, आप कोई बात नहीं। हाँ कोई इशू नहीं सर, आप जैसे स्पोर्ट्समैन हैं तो आप राइट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी ज्वाइन कर सकते थे। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी मैं ज्वाइन कर सकता था। देखिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिंपली क्या होता है कि आपको प्लेयर्स को मैनेज करना, आपको टीम्स को मैनेज करना है, राइट? मेरी आदत रही है खेलने की, देखने की नहीं, राइट? अब मैं वहां बैठ के टीम को चेयर करूं, डू वेल, डजंट मेक सेंस फॉर मी, राइट? ऑल्सो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डजंट पे वेल, राइट? until unless you have your own business, the career itself doesn't pay well। और मुझे खेलने में इंटरेस्ट है यार, मैं किसी को सपोर्ट करूं कि हाँ भाई बहुत अच्छा खेल लो और खेलो, इट डजंट मेक सेंस फॉर मी, राइट? दिस इज द थिंग। या ओके। एक क्वेश्चन था, जैसे एज अ फ्रेशर आपको मतलब अच्छी पैकेज मिल रहा था, 5.5 भी अच्छा था, 8.5 भी अच्छा था, मतलब हाउ यू गॉट द कॉन्फिडेंस कि मुझे इससे और अच्छा मिल सकता है? मतलब आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था? क्योंकि हम लोग होते तो 5.5 भी नहीं शायद जॉइन करके बैठ गए होते। मेरा माइंडसेट शुरुआत से बहुत वैसा रहा है भाई, कि मतलब अगर मैंने देखा था कि 12 लाख, मैंने टेम्पलेट पे देखा था कि 12 लाख इज द हाईएस्ट अप टू 12 lakhs, राइट? मेरा स्टार्टिंग से था कि या तो मुझे 12 चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं फ्रेशर हूँ कि क्या हूँ। तो संजीव सर टोल्ड मी कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन यू आर अ फ्रेशर, सो हाउ विल यू डू दैट? मैंने कहा सर आई विल, राइट? मैंने सुधांशु सर को भी यही बोला था कि सर मैं अपनी तरफ से करूंगा, आप इंटरव्यूज अलाइन करो, क्रैक करना मेरा काम है, राइट? सो ऑब्वियसली लाइक या ऑब्वियसली आई एम अ फ्रेशर, तो इंडस्ट्री डजंट पे यू 12 lakhs। जो 12 लाख आपने टेम्पलेट पे देखा होगा, दैट इज एन एक्सपीरियंस गाय हु गॉट दैट, राइट? But still 9 LP I got in the first job that I got, so it is great, right? Yeah, anyone else was asking something? या Can I सर, आई ask? वांटेड टू नो वन मोर थिंग सर। ये विजय भाई आप पूछ लीजिए पहले। Sorry, sir. कितने Actually, I स्टूडेंट्स थे turned off मतलब? my. Re- Yeah, Abhishek, first you speak. सर आपके बैच में आप कितने स्टूडेंट्स थे? मेरे बैच में अराउंड 15 थे आई गेस। तो सर यू आर द ओनली वन जिसकी इतनी हाईएस्ट मतलब प्लेसमेंट जो लगी है? हाँ, हाईएस्ट तो मैं ही हूँ। कितनी सर, कितनी सीटीसी आपकी? राइट नो करेंट बता दूं? हाँ जी सर। मेरी 13 वही लाख के जानने के लिए आसपास बैठे है। हैं। सही है। तो वो कैसे हुआ वो भी बताता हूँ। रिपीट सर, प्लीज रिपीट। वो कैसे हुआ और सर बताता जो हूँ। बाकी के 14 स्टूडेंट्स थे सर, उनकी ऐसे मतलब एवरेज तो सब सर लोग 13 लाख पर एनम की है कि सर मंथली है? भाई, पर एनम। if I were making 13 lakhs a month, I would have been sitting here, नहीं right? सर, मैं 13 लाख सुनने के बाद कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने पूछा। मैं मतलब मैं इतना भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ भाई, राइट? आई एम नहीं वन सर, ऑफ यू गाइस ओनली। अरुण, नहीं सर, ये यस MLM सर। की क्लास, MLM वाली चीज नहीं है यहाँ पे, है ना? कि एकदम क्या निकलेगा अपना लेवल निकलेंगे अपने वाला समय नहीं है दोस्त, यहाँ के 13 लाख पर मंथ वाला कहीं भी राइट। नहीं सर रहते अब वहाँ पे। मतलब सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, पूछा आपने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ विजय कुछ पूछ रहे थे। Sorry, sir. Actually, I turned off my camera because there is a lot network issue. Can I नो ask वरीज my नो question? वरीज, श्योर। So actually, like how important is English in sales? Because most of us we इट are इज from नॉट इम्पोर्टेंट।
like but for growth purpose like नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। मैं आपको बोला ठीक है तो सर मेरा जो इंटरव्यू लिया अलीबाबा में, ही वाज द सेक्टर हेड। इसका ये ओके मतलब थोड़ी कि वो बड़ी पोजीशन पे नहीं है, इफ ही वाज इंटिमिडेटेड विद माय इंग्लिश, राइट। करेक्ट सर यस उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, बट ही वाज द सेक्टर हेड। 50-60 लाख पर तो होंगे ही वो, ग्रेट सर राइट। सो इंग्लिश इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट इज गुड टू हैव बट नॉट अ नेसेसिटी। सर तो मतलब लाइक अगर स्किल आनी हम चाहिए। जैसे अभी इस पोजीशन पे है तो अभी हम फ्रेशर ही हैं तो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको ये क्रैक करना है, लाइक इतना हमको चाहिए होगा तो बेस्ट होगा, लाइक आप थोड़ा सा होता है ऐसा एक्सप्लेन कीजिए। इट इज ऑल अबाउट द इंटरव्यूज। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ विजय, अगर अभी आपको डायरेक्टली कोई बोल दे 13 लाख ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट, राइट। मेरा कैसे हुआ, बहुत शॉर्ट स्टोरी है, मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो इन द फर्स्ट मंथ ऑफ माई जॉब I was at 9 lakh, where is 6 lakh is base and 3 lakhs is variable, right? Which is the incentive and everything, right? तो मैं 9 लाख पे मैंने ज्वाइन किया नेक्स्ट डोर एआई, ठीक है। In the very first month, in the first 17 days, I was sitting at a very low revenue, ठीक है। So mid month meeting में they asked कि प्रहर्ष कैसे करोगे 100%। मैंने कहा सर मैं कर लूंगा। उन्होंने कहा कैसे करो, मैं कहा सर मैं कर लूंगा। कहा ठीक है। In the coming 13 days, I surpassed all of them and I was the highest revenue getter in the organization in the very first month. ठीक है। And this distance that I'm telling you about, that I cleared in just 13 days, right? और हमारी वर्क फ्रॉम होम जॉब थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। Then like our co-founder, he got a meeting with me. He said कि प्रहर्ष, we are setting up a office in देहरादून और हम लोग सब लोग को बुला रहे हैं यहाँ पे, तो आपको भी आना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं तो नहीं आ पाऊंगा बिकॉज ऑफ these reasons। उन्होंने बोला कैसे आ पाओगे। मैंने कहा सर कम से कम मेरा फिक्स्ड सैलरी जो है उसको आप 20,000 बढ़ाइए और वेरिएबल सैलरी मेरा इतना इतना बढ़ाइए, इतना इतना लाख बढ़ाइए, तब मैं आऊंगा। उन्होंने कहा प्रहर्ष, दिस इज द वेरी फर्स्ट मंथ दैट यू हैव जॉइन्ड द ऑर्गेनाइजेशन and in the organization after 1 month you are asking me for a 40% hike, or how is that possible? मैंने उनसे in very simple terms I told sir, इस organization में there are guys who have 11 years of experience, there are guys who have 7 years of experience, 10 years of experience, right? Who is the highest revenue getter amongst all of them? उन्होंने कहा ठीक है भाई ऑफर लेटर आ जाएगा, राइट। सर तो क्या सेल्स में वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है क्या? मतलब because he knows the values like what you have सेल्स given। बस बात वही है ना, आप डायरेक्टली, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली जाके बोल दो 10 लाख मुझे दे दो, शायद ना मिले। 6 लाख पे एंटर करके ऐसे लोगों को सरपास करो जो 10 लाख पर हैं, क्यों नहीं देगा आपको 10 लाख वो? सेल्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं देखता है। हाँ सेल्स में वर्क सर फ्रॉम होम मिल सकता है। मेरा तो वर्क फ्रॉम होम ही था, बट लाइक राइट नाउ आई एम इन देहरादून, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बताइए नितिन। सर जैसे कि एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन हुए थे, जब भी आप इंटरव्यू पे बैठे होगे तो उन्होंने जैसे कि नहीं, जैसे फर्स्ट ऑफ जैसे एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपसे भी किया होगा उन्होंने? जो हमारी पोस्टिंग आई थी, जो वो आया था, व्हाट वी से, इंटरव्यू नहीं इंटरव्यू नहीं, जो टेम्पलेट रिलीज हुआ था नेक्स्ट डोर एआई का, उसमें लिखा था अप टू 10 LPA, राइट। यस सर। तो ये तो चलिए मेरा थर्ड इंटरव्यू था, मैं फर्स्ट इंटरव्यू आपको बताता हूँ इमोहा में, ठीक है। यस सर। तो सैलरी नेगोशिएशन पे जब वो आएगी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, मैंने कहा सर, मेरे दिमाग में स्ट्रेट था, मैंने कहा सर 6 LPA, 6 LPA, राइट। हाँ मैंने डायरेक्ट बोला था। यस सर। तो उन्होंने बोला कि हाउ कम यू आर आस्किंग फॉर 6 LPA दिस एंड दैट, लाइक यू आर अ फ्रेशर एंड सो दिस इज नॉट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। मैंने कहा, मैं आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, आई टोल्ड हिम सर आई विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स आल्सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आई विल गिव यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। और इंटरव्यू इस पॉइंट पे पूरा हो चुका था। ही सेड ओके। उनका पर्स 5 लाख का था, स्टिल उन्होंने 50,000 बढ़ा के 5.5 करा था। देन आई क्रैक्ड अली बाबा। मतलब सर जेन्युइन आंसर आपने दिया कि मतलब
मैं कर सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मैं कर लूंगा और ये सारी चीजें। तो ये या कौन खुशी, मतलब आपने एज अ फ्रेशर आपने मतलब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमको अगर बोला जाए तो हम तो थोड़े में मान जाए, और कॉन्फिडेंस कैसे आया इतना, यानी इतना प्राइस बोलना है। खुशी, इट इज नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट इज अबाउट माइंडसेट। अगर आप कहोगे मुझे 3.5 लाख मिल जाए, तो आपको 3.5 लाख मिलेगा। आप बोलो 5 लाख मिल जाए, 5 मिलेगा। आप बोलो 10 मिल जाए, 10 मिलेगा। इट इज ओनली अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड द माइंडसेट। जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट किसी ने पूछा था, सर एवरेज कितना मान सकते हैं, राइट? किसी ने तो पूछा था कि एवरेज कितना मान ये सकते सर हैं। मैंने पूछा था, सर मैंने पूछा हाँ, अभिषेक ने पूछा था एवरेज कितना मान सकते हैं। आपको एवरेज सोचना ही क्यों है? अगर आप एज अ फ्रेशर सोच सकते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि इतना मतलब क्यों नहीं सोच सकते अभी हो? कोई, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि जितने एक्सपीरियंस होते हैं उनको हाई सैलरी मिलती है, और मेरी हमें ऑर्गेनाइजेशन में करेंटली देर आर पीपल हु हैव 11 years of experience, 10 years of experience, 7 years of experience। मेरी उन सबसे ज्यादा सैलरी है। मेरा जो टारगेट है इस महीने का, वो मेरी सेल्स हेड से 4,000 ज्यादा है, राइट? मेरी डिपार्टमेंट हेड से ज्यादा मेरा टारगेट है। तो आपको सैलरी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपको बस अपने आप को प्रूव करना चाहिए, ऑल्सो उनको लगना भी चाहिए। ऐसा सर नहीं है मुझे कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और लास्ट में आप बोल रहे हो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई कैन गेट 10 LPA सैलरी। इंटरव्यू कैसा गया उसमें पता भी तो चल जाता है। मेरा मुझे सीटीसी और इन हैंड का जरा गेम बात समझा दीजिए कि इन हैंड और सीटीसी में क्या इन मतलब, हैंड, जैसे आपने बताया राइट, सीटीसी 9 लाख और फिर इंसेंटिव वगैरह, ये तो राइट। सो देखिए, सेल्स में क्या होता है ना, सेल्स में आपका असली पैसा बनेगा इंसेंटिव से, राइट? जैसे पिछले महीने मेरी मोटा मोटी लाख के आसपास आई थी सैलरी, 1 लाख के आसपास, ठीक है, 1 लाख से थोड़ा कम, इंसेंटिव और सैलरी मिला के, ठीक है? अब अगर सर 21 आपके साल तेरह की एलपी उम्र है में, तो 13 LPA है तो 1 लाख तो सैलरी ही हुआ है फिर तो फिर। नहीं, 13 LPA जो है इसमें वेरिएबल भी तो है। और अगर आप सोच रहे हो 13 लाख में पूरा आपको मिल जाए, आप टैक्स नहीं भरोगे? टैक्स भी तो भरना पड़ेगा, नहीं पीएफ मतलब कटता है, ये ग्रेच्युटी कटती जैसे है। सर इन लाइक हैंड कितना आता है सर? सर फॉर 13 LP एग्जाम्पल, पे इन नहीं हैंड नहीं कितना आता है? इन हैंड मैंने आपको बताया ना, पिछले महीने 95 के आसपास आया कुछ। नहीं ओनली फॉर सैलरी एग्जाम्पल विथ जैसे मान रेवेन्यू? लीजिए, सॉरी, ओनली सैलरी है विथ रेवेन्यू? ना, विद एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू। ओके। फॉर एंड एग्जाम्पल सर एक एक करके सर पूछिए। मतलब सर मतलब कितने टाइम के बाद, कितने मंथ्स के बाद आप इंटरव्यू में बैठने लगे थे इंटर्नशिप के लिए? हमारा जो बैच था उसमें आफ्टर 30-40 odd days वी स्टार्टेड, बिकॉज जनवरी में क्या होता है, बिकॉज उस टाइम मतलब इतना हायरिंग नहीं चल रहा था। पहले तो हम लोग का मतलब ट्रेनिंग ही हुआ महीना 1.5 महीना, राइट? उसके बाद द हायरिंग स्टार्टेड, क्योंकि एकदम स्टार्ट ऑफ द मंथ में, स्टार्ट ऑफ द ईयर में एकदम हायरिंग नहीं चल रही रहती है, राइट? और उसके बाद फिर हम लोग के इंटरव्यूज अलाइन होना स्टार्ट हुए एंड एवरीथिंग, राइट? सो अराउंड 40 days आफ्टर दैट वी गॉट। आप लोग का जहां तक है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आपका कितने इंटरव्यू के बाद क्लियर हो गया था? सॉरी, आपका मतलब कितने इंटरव्यू के बाद क्लियर हो गया था ये? मेरे सारे क्लियर है, मैं 3 में ही बैठा हूँ, तीनों निकल गए थे। अच्छा। हाँ, सर मेरे को पूछना था एक बात बताइए। कि आपकी फर्स्ट कंपनी कौन सी थी, मतलब फर्स्ट जो जिसमें आपने ज्वाइन ऑफर आया की? था, हाँ। ऑफर पहला इमोहा में आया था, दूसरा आया था अलीबाबा में, तीसरा आया था नेक्स्ट डोर एआई में। और इन तीनों की स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी आपकी? पहले में 5.5 थी, दूसरे में 8.5 थी, तीसरे में 9 थी। तो जैसे सर हम लोग अभी फ्रेशर हैं, तो मतलब आफ्टर मतलब अगर मैं मतलब ऐसा पूछना चाहूँ, मतलब फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट इंफॉर्मेशन ओनली, जैसे अब अभी हम लोग फ्रेशर हैं, हम लोग का कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, तो कौन सी कंपनी, मतलब ऐसा आपने बताया सब्जेक्टिबल है, बट फिर से मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि सर अभी तो जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग को पता नहीं है सर कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, कौन सी हम लोग के लिए सही रहेगी, इस बेस पे थोड़ा।
देखिए उसके लिए मैंने आपको बता दिया, बहुत सब्जेक्टिव, मैं कैसे सही या गलत इसका बता दूं। बट नहीं अगर मतलब आपको वैसे, गाइडेंस की बात है, अगर हाँ गाइडेंस की बात है अरुण, गाइडेंस के लिए पूछ रहा हूँ। तो उसके लिए आपके पास संजीव सर है, सुधांशु सर है, विवेक सर है, त्राप्ति मैम है, राइट। और वैसे भी यहाँ पे जो भी कंपनीज आएंगी, कोई ऐसी कंपनी आएगी नहीं जो आपको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, राइट। पेप्सी को आएगी ज्वाइन नहीं करोगे आप, या कोका कोला आएगी ज्वाइन नहीं करोगे, अलीबाबा आएगी ज्वाइन नहीं करोगे, अब है ना। सर करेंगे तो, बट ऐसा मतलब पता नहीं है ना, इसी बेस पे थोड़ा गाइडेंस के लिए। आपको देखिए, मैं बताने को तो मैं अपने हिसाब से बता दूं, लेकिन वो आपके लिए सही जवाब नहीं होगा। मैं यही बोल रहा था, इंडिया में लोग सोचना नहीं चाहते, चाहते कि कोई बता दे क्या करना है। सर एक्सपीरियंस नहीं है तो इस बेस पे मुझे पूछा, भी बाकी एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक। सर जी खुशी, आप बता रहे हो कुछ। हाँ सर, वही मैं पूछ रही थी कि जैसे कि सेल्स टिप्स क्या है, जैसे कि हाँ ठीक है सैलरी इतनी है, पर उसमें हमको मेहनत भी तो करना होगा, तो ऐसा मेहनत तो हम करनी क्या क्या, पड़ेगी। हाँ तो ऐसा हम क्या करें, और भी कुछ चीजें जो हमको, जो हमारे आपने लिए इम्पोर्टेंट हो। बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है, मतलब कुछ आप एक पॉइंट तो दीजिए। जैसे कि सेल्स टिप्स आप ये समझ, स्टैट्स के लिए टिप्स आपको चाहिए? नहीं सेल्स के मतलब सेल्स के लिए, सेल्स अच्छा। सेल्स सेल्स के लिए क्या मतलब बेस्ट रहेगा, कैसे मतलब अप्रोच करते हैं इसका पहले का मतलब। और राइट। ऐसा हम क्या मेहनत करें, और भी चीजें। देखिए मेहनत तो आपको देखिए, मैं बताता हूँ, जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, जो ऑन द जॉब आपकी ट्रेनिंग रहेगी, उसी में आप सबसे ज्यादा सीख पाओगे। अगर मैं जेनरिकली आपको बता दूं सेल्स में सबसे जरूरी क्या है, उसकी आपको ट्रेनिंग मिल भी चुकी होगी, मैं भी आपको बता देता हूँ। रैपो बिल्डिंग जो होती है, राइट। इफ यू आर एबल टू फाइंड अ कनेक्ट विद द अदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल हर्ष ने बताया मैं लखनऊ से हूँ, मैंने बोला अरे मैं भी लखनऊ से हूँ, वाह लखनऊ में कहाँ से, अच्छा अलीगंज से, मैं भी इंदिरा नगर से ही रहता हूँ। अब उनके गार्ड्स डाउन हो गए, राइट, कि अरे ये तो अपना भाई है, राइट। सो ही इज मोर लाइकली टू परचेज फ्रॉम मी, राइट। विवेक सर ने बताया था कि कहीं के भी हो तो बता दो, फॉर एग्जाम्पल हाँ अगर जमशेदपुर से हो, so my nani ji lives in Jamshedpur, wow, it is a great place and everything, right? उन्होंने So बहुत सर समझाया हमको। सर हमेशा विवेक सर यही डांटते हैं कि तुम लोग रेपो बिल्डिंग नहीं करते। हाँ आप एक बात बताओ, देखो अभी इंडिया में इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, सब हो रहा है, राइट। तो कोई भी इंसान अगर आपसे खरीदेगा तो उसको हमेशा उसके गार्ड्स अप रहेंगे कि कहीं ये मुझे कुछ गलत ना पकड़ा दे, मेरे से मेरा पैसा लेना चाह रहा है, राइट। आधे से ज्यादा लोग को तो इम्पोस्टर सिंड्रोम रहता है, राइट। तो आप लोग अगर जब रैपो बिल्ड करते हो ना, तो उनको कंफर्टेबल फील होता है, दे फील दैट यस आई एम बीइंग हर्ड। अगर मैं हर्ष से बोलूं कि मुझे फोन बेचो, कोई भी फोन बेचो, लेट्स से रियलमी का फोन बेचो, अगर डायरेक्टली आप बोलने लगोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंटरव्यूज भी ले रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर डायरेक्टली, मैंने एक का इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा सेल मी दिस फोन, तो कह रहा है दिस इज दिस फोन, इट हैज दिस फीचर, ये वो। मैंने उनसे बाद में पूछा, आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, फोन बेचने लग गए, राइट। आपको जब बेच आप के दिखाऊं क्या? बेच के आप दिखाना चाहो दिखा लो, कोई बात नहीं। टाइम कैसे नहीं तो मैं सर अपना दिखा सकता। हाँ, आप बाद में किसी और को बेच लेना, मेरे पास तो है फोन अभी, राइट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि रैपो जब आप बिल्ड करते हो, तो आपके क्लाइंट के गार्ड्स डाउन होते हैं, मतलब उनको लगता है यस ही और शी इज द राइट पर्सन टू टॉक टू। फिर आप उनसे प्रोब करो, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन पूछो। फॉर एग्जाम्पल खुशी से अगर मैं बोलूं कि खुशी, डू यू हैव अ फोन राइट नाउ? यस विच फोन यू हैव? सैमसंग। Samsung, great. Yeah, Samsung is a great company. Yeah, Trapti is saying something. I'm saying कि we are running out of time, guys. So let's wrap this up. 5 minutes. No? Yeah, sure. We will. थैंक यू सर, हम अच्छा लोग फिर लगा से आपसे। रखेंगे सेशन। Right, right. सेशन फिर से रखेंगे, रखते रहेंगे, और भी टीम और भी मेंबर्स हैं उनके साथ भी रखेंगे। डोंट वरी। Right. एक ही से सारा चीज सीख लोगे तो कैसे चलेगा, औरों से भी तो इंटरेक्ट करो। सब सही सही चीज एक सही ही है। से थोड़ी ना सीख लेना है। हमारा पहला है ना, तो हम तो अपना सब कुछ सीखना हम चाहेंगे। नहीं, एक्साइटेड हैं दूसरा भी फिर। होगा, तीसरा भी होगा, डोंट वरी। बहुत Right. सारे होंगे, डोंट वरी। वील हैव मल्टीपल सेशंस, हम लोग और भी एक्टिविटीज करेंगे।
जिससे आपकी लर्निंग होगी, आपकी स्किल डेवलप होगी। डोंट वरी विद दैट, वी हैव मल्टीपल प्लान्स फॉर यू गाइस। हम ही लोग बन के आए एक दिन ऐसे लोग। हो सकता है नेक्स्ट टाइम अरे डेफिनेटली आओगे भाई, या बिल्कुल। क्या पता अगले महीने ही आ जाओ, क्या अच्छा, पता एक अगले महीने ही आ जाओ। एक बात है, आप सब लोग में से हो सकता है कोई ना कोई नेक्स्ट डोर एआई में आ जाए। भाई मेरी सैलरी डिस्क्लोज मत करना, यहाँ सब लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, उन लोग का ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मेरी नहीं सैलरी नहीं कोई मत नहीं, बताना। हम तो इसी बात पे सैलरी बढ़वाएंगे कि आप उनको दिए हैं 13 लाख, तो हमको भी दीजिए। नहीं नहीं, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। यहाँ इंटरव्यू ये मैं भी हर्ष लेता हूँ। बहुत चालाक है, हर्ष बहुत हाँ, चालाक है प्रहर्ष। हर्ष, आप अगर हर्ष हो तो मैं प्रहर्ष हूँ, याद रखना। राइट। Okay, guys, ठीक it है। was a great session. Any quick थैंक questions यू सर, anyone want to ask? थैंक यू सर सर, वन क्वेश्चन। हाँ, Yeah, शुभम का Shubham. क्वेश्चन सर ले वन लो क्वेश्चन। प्रहर्ष। Right. सर मैं पूछ रहा था कि आप जैसे कोर्स स्टार्ट किए होंगे सेक्रेड स्कूल ऑफ बिजनेस में, तो उसके मतलब कितने दिन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए मतलब आना, मतलब इंटरव्यू मैंने बताया ना, in the first कंपनी 40 days, पहले ओके 1.5 महीने में हमारा पहला इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। तो वो मैंने क्रैक कर लिया था, उसके बाद और भी इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे। एक्चुअली एक और इंटरव्यू मेरा होना था टीएल के लिए डायरेक्टली, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगने लग गया, तो मैंने कहा सर मैं यही करूंगा। तो मतलब आपके और सर मल्टीपल इंटरव्यूज। हाँ बोलिए। सर आप जैसे बोल रहे हो कि मोबाइल ये सब बेचना रहता है, जैसे अलीबाबा में मतलब उसमें काम क्या रहता है, मतलब नहीं लोग को नहीं, ये मोबाइल ये सब। आपको सर मोबाइल नहीं मतलब बेचना रहता है, ये मैं इंटरव्यू क्वेश्चन है। जैसे आपसे बोलते हैं ना, सेल मी अ पेन, सेल मी अ हाँ मोबाइल, सेल मी द शर्ट दैट यू आर वेयरिंग, हाँ राइट? हाँ, इस तरीके से, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। अलीबाबा में तो आपको वो ये नहीं बेचना है। वही हम अली सोचे सर, लोग तो मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है, कोई क्यों खरीदेगा किसी का कॉल पे कि मतलब नहीं फोन ले नहीं, लीजिए ये वो दिस कर इज एन लीजिए। इंटरव्यू क्वेश्चन दैट आई वाज शुभम, स्पीकिंग। बेचना तो हाँ आपको हाँ, कंपनी का प्रोडक्ट है ना, जो उस कंपनी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा वो आपको सेल करना है। यस यस। शुभम अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें ठीक है खुद ही सर। बिठा के रखा है कि नहीं ये बोलेंगे तो वो तो कस्टमर यही बोल देगा, तो बिकेगा मेरा कैसे, है ना शुभम? राइट। शुभम बेचना सर पड़े तो मतलब सभी बेच लेंगे, है ना? ये लोग एटीट्यूड सब तो, रखना। हाँ हाँ सर, ठीक है, चलो। ठीक है। और अभी ये ठीक फर्स्ट है है यार, गाइस। देखो ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास एलुमनाई हैं जो आप लोगों से मिलेंगे, है ना? और आप लोग सब बनोगे इसमें से, ठीक है? तो अभी जो क्वेश्चंस हैं, आप हो सकता है कि एक समय बाद क्वेश्चन लोगे, ठीक है? राइट। तो चलो, तो सारा सेल्स एक ही दिन में नहीं सीख लेना है, अभी है टाइम सीखने के लिए। जी जी, आप सब लोग अच्छे से सेशंस अटेंड करिए, जो भी क्वेश्चन होता है अपने मेंटोर से पूछिए, ठीक है? ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है कुछ भी सीखने का, राइट? मैक्सिमाइज ऑन इट, जितना आप सीख सकते हो सीखो, और उसके बाद यू ऑल आर गोइंग टू गेट ग्रेट जॉब्स, ऑलराइट? I hope this session was helpful for you guys, and I enjoyed a lot. Thank you, Sanjeev sir and Trapti ma'am for थैंक having यू me. सो मच थैंक प्रहर्ष, यू थैंक सर। यू मच फॉर All right. जॉइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू Bye, सो bye, मच। guys. Bye, थैंक यू Vivek सर। sir. Bye, Sudhanshu sir. बाय, गुड नाइट। Bye. ठीक है गाइज, आई होप ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, जो भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स थे सारे, वो सब क्लियर हो गए होंगे। डोंट वरी, विल हैव मोर सेशन, ठीक है? और भी सेशंस होंगे, और भी एलुमनाई से इंटरेक्शन होगा, और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, ठीक है? डोंट वरी विद दैट। यस मैम। ओके, नाउ लेट्स मीट ऑन मंडे गाइज, ठीक है? ओके, यस मैम। थैंक यू मैम। ओके गाइज, ओके एवरीवन, नाइट मैम। बाय, थैंक यू, गुड नाइट। सुधांशु सर, हाँ जी। सर हर्ष बोला।